ویلکم بیک. آپ کو بتائیں وفاقی حکومت کی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافے، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز، نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ، تمام ٹیکس سلیبز میں کمی کر دی گئی ہے. 50,000 ماہانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. 50,000 سے 1 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر 1% ٹیکس لگے گا. 12 لاکھ سے 22 لاکھ سالانہ تنخواہ پر 6,000 روپے فکس اور 12 لاکھ سے زائد رقم پر 11% ٹیکس عائد ہوگا. 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 1,16,000 روپے فکس اور 22 لاکھ سے زائد رقم پر 23% ٹیکس لگے گا. 32 لاکھ سے 41 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 3,46,000 فکس ٹیکس ہوگا، جبکہ 32 لاکھ سے زائد رقم پر 30% ٹیکس عائد ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے. تنخواہ دار طبقے کے لیے آمدنی کی تمام سلیب میں انکم ٹیکس کی شرح میں نمایاں کمی کی تجویز دی گئی ہے. گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز ہے، جبکہ 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی رکھنے والے تنخواہ دار ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. 12 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ملازمین پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 روپے کرنے کی تجویز ہے. 22 لاکھ روپے تک آمدنی رکھنے والے ملازمین پر انکم ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. حکومت نے آن لائن شاپنگ کرنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کیش آن ڈیلیوری خریداری میں کپڑوں اور ملبوسات پر 2% ٹیکس لگے گا. الیکٹرانک اشیاء پر 0.25% ٹیکس دینا ہوگا. دیگر اشیاء پر 1% ٹیکس دینا ہوگا. ای کامرس کے ذریعے 10,000 روپے تک کی خریداری پر بینک یا آن لائن ادائیگی کی صورت میں 1% ٹیکس لگے گا. 10 سے 20,000 روپے تک کی خریداری پر 2% ٹیکس دینا ہوگا. 20,000 روپے سے زائد کی خریداری پر 0.25% ٹیکس لگے گا. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ آن لائن کاروبار کی وجہ سے ریٹیلرز کو نقصان پہنچا ہے. کوریئرز اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والے ادارے ای کامرس کاروبار والوں سے 18% ٹیکس وصول کر کے حکومت کو جمع کروائیں گے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے کمانے پر ٹیکس دینا ہوگا. نیا قانون آ گیا. نئے قانون کے تحت آڈیو، ویڈیو اور میوزک سٹریمنگ سروسز سے کمائی شامل ٹیلی میڈیسن، ای لرننگ، کلاؤڈ سروسز، آن لائن بینکنگ سروسز بھی ایکٹ کے دائرے میں آئیں گی. ای کامرس، ای سٹور اور آن لائن مارکیٹ بھی ٹیکس کی زد میں. غیر ملکی کمپنی سے پاکستان میں اشیاء اور خدمات کے بدلے بھیجے جانے والی رقوم پر بینک اور ایکسچینج کمپنیز 5% ٹیکس جمع کروائیں گی. یہ ٹیکس اگلے ماہ کی 7 تاریخ سے پہلے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کروائیں گی. ٹیکس کاٹنے اور جمع کرانے میں ناکامی پر متعلقہ بینک یا ایکسچینج کمپنی کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان میں موجودگی رکھنے والا ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم حکومت کو 3 ماہ کی رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہوگا. بیرون ملک سے خریداری میں ادائیگی کا ذمہ دار ادارہ بھی 6 ماہی رپورٹ جمع کروائے گا، جس میں خریدار کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ادائیگی کی تاریخ اور رقم درج ہوگی. رپورٹ جمع نہ کرانے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اگر 3 ماہ تک غیر ملکی کمپنی ٹیکس دینے سے اجتناب کرے تو بینک یا ایکسچینج کمپنی اس کی طرف سے رقوم کا بھیجنا معطل کر دیں گے. غیر رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف سخت فیصلے. سیلز ٹیکس ایکٹ میں ایف بی آر کو مزید اختیارات مل گئے. ایف بی آر کمشنر رجسٹر نہ ہونے والے افراد اور کمپنیز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر سکے گا. نان رجسٹر افراد اور کمپنیز کی غیر منقولہ جائیداد کی ٹرانسفر پر پابندی لگائی جا سکے گی. کمشنر ایف بی آر نان رجسٹر افراد اور کمپنیز کے کاروبار کی جگہ اور منقولہ جائیداد ضبط کر سکے گا. بار کوڈ یا ٹیکس سٹیمپ کے بغیر اشیاء کو فوری ضبط کیا جا سکے گا. پیٹرول مزید مہنگا. پیٹرول پر چلنے والی گاڑیاں بھی مہنگی. فرنس آئل سے بننے والی بجلی پر بھی مزید ٹیکس لگے گا. وفاقی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کاربن لیوی عائد. پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی دینا پڑے گی. پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی تمام گاڑیاں بشمول ہائیبرڈ کاروں پر سیلز ٹیکس کی شرح 8.5% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے. 850 سی سی سے کم ہارس پاور کی نئی گاڑی پر سیلز ٹیکس کی شرح 12.5% سے بڑھا کر 18% کر دی گئی ہے. 2026-27 میں کاربن لیوی کی شرح 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی. تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کیپیسٹی کے مطابق لیوی عائد کی جائے گی. انرجی وہیکل پالیسی پر عمل کے لیے اہم اقدامات کا اعلان. پیٹرول اور ڈیزل کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دی جائے گی. الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشوں کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا.
वफाकी बजट में इनकम टैक्स की वसूलियों को बढ़ाने के लिए मजीद इकदामात का फैसला किया गया है। फाइलर बनने के लिए टैक्स गोशवारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाना होगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वाले ही कारोबारी लेन देन कर सकेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट ना जमा करवाने वाले गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बगैर वेल्थ स्टेटमेंट के गाड़ियों की खरीदारी भी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराए बगैर सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। वेल्थ स्टेटमेंट जमा ना करवाने वालों पर बाज बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी होगी। फाइलर्स को अपनी माली हैसियत, आमदन, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली जराए के सबूत पेश करना होंगे। बैंक्स को अकाउंट होल्डर्स के बारे मालूमात फराहमी लाजमी करार देने बारे कवानीन लाए जाएंगे। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई है। हुकूमत का कॉरपोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ का फैसला। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सेल्स टैक्स में 0.5% कमी का फैसला किया गया है। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में भी कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया गया। तीसरी स्लैब में 3% से कम करके विद होल्डिंग टैक्स 1.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों के ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। गुज़िश्ता बजट में 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई थी। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया। हुकूमत का मॉर्टगेज फाइनेंसिंग को भी फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम कर 1% कर दी गई। आइंदा माली साल के बजट में पानी और आबी ज़खायर से मुतालिक जंगी बुनियादों पर इक़दामात के अज़्म का इआदा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है, इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताहम इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने आबी वसाइल में जंगी बुनियादों पर इजाफा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जल्द ही इस हवाले से तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तुग़यानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इक़दामात और मौसमियाती तब्दीली के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के लिए माली साल 2025-26 के लिए 6.64 अरब रुपए अखराजात के लिए मुख्तस मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस पर 3.26 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक अफसरान की तनख्वाहों के लिए 54 करोड़ और दीगर अमले के लिए 91 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हादसाजात की खरीदारी के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं, जबकि असासाजात की खरीदारी के लिए 42 करोड़ और तरक्याती कामों पर 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिटायरमेंट पर 23 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा गया है, जबकि ग्रांट, सब्सिडीज और कर्जाजात की माफ़ी की मद में 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑपरेटिंग अखराजात का बजट 1.03 अरब रुपए रखा गया है। माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें 6,501 अरब रुपए खसारा है। 8,207 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहदार तबके, प्रॉपर्टी के शोबे को रिलीफ मिला है। सोलर पैनल की दरामद पर भारी टैक्स आयद कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4.2% और अफराती दर 7.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई। बजट खसारा GDP की 3.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस 2.4% रखने का हदफ मुकर्रर किया गया। FBR के महसूलात का हदफ 14,131 अरब रुपए, जबकि सूबों को 8,206 अरब रुपए दिए जाएंगे। विफाकी नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 5,147 अरब रुपए, खालिस आमदनी 1,172 अरब रुपए रखी गई है। विफाकी हुकूमत के कुल अखराजात 17,573 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मख्तस किए गए। दिफाई बजट 2,250 अरब रुपए, जबकि सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए रखे गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखे गए। ग्रांट्स की मद में 1,928 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 1,000 अरब
अरब रुपए, जबकि कराची से चमन शारा N25 के लिए 100 अरब रुपए मख्तस किए गए। ज़राअत को 4 अरब रुपए और हायर एजुकेशन को 38.5 अरब रुपए की रकम दी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के 31 मंसूबों के लिए 4.8 अरब रुपए और उमूमी तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मख्तस किए गए। दार स्कूल के क़याम के लिए 9.8 अरब रुपए, सेहत के 21 बड़े मंसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए और गवर्नेंस के लिए 11 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। आज़म ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, पूरी कौम की काविशों से मुश्किलात से बाहर निकल आए। हुकूमती इक़दामात की बदौलत अहदाफ को हासिल करने में मदद मिली। वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। जंग में दुश्मन को हमने शिकस्त फाश से दो चार किया। भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में कोई ऐसी शिक नहीं है और ना हम बर्दाश्त करेंगे। हम अपने पानी के एक एक कतरे का दिफा करेंगे। पूरी कौम की मेहनत से और हुकूमत की आप सबकी काविशों से, अल्लाह ताला के फजल करम से इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पर अब हमें टेक ऑफ करना है। हमारे तमाम जो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइस इत्मीनान हैं। चाहे आपका इन्फ्लेशन रेट है, हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में उसको शिकस्त फाश दी है। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर ने बात की इजाज़त का मुतालबा किया। इजाज़त ना मिलने पर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने डेस्क बजाए और नारे लगाकर एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बना लिया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बजट में तनख्वाहें जितनी बढ़ी हैं इसमें हमारा तो गुजारा हो जाता है, लेकिन आम लोगों का गुजारा नहीं होता। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि अपने खर्चे कम करें, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम को बजट पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पहला अवाम, किसान, मुलाजमीन और सनतकार दोस्त बजट पेश किया गया है। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ में मावन साबित होगा। मरीम नवाज का कहना था कि नया बजट अवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। मईशत की तरक्की का फ़ायदा हर फर्द तक पहुँचाएंगे। IMF प्रोग्राम से निजात का अज़म रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। बजट में मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया। महंगाई में कमी आएगी। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि बजट में आवाम के लिए हवा के गर्म थपेड़े हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। सिर्फ एक ताज़ा हवा का झोंका है तनख्वाहदार तबके के लिए। कि गरम गरम थपेड़े जो आपने इस्लामाबाद के मौसम में आपने सहे हैं, सिर्फ एक हवा का ताज़ा झोंका है तनख्वाहदार तबके के लिए 6 लाख से 12 लाख उनकी वो कर दी कि जो 12 लाख कमाएगा वो टैक्स देगा, 6 लाख कमाने वाला नहीं सालाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि ये बजट ना अमीरों का है ना गरीबों का, ये IMF का बजट है। उन्होंने कहा कि आज तो मैं भी मायूस हूँ और गरीब भी मायूस है, अमीर भी मायूस है। कुछ अच्छे इक़दाम उठाए गए हैं, महंगाई और इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी आई है, शुबा ज़राअत बैठ गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, JUIF के रुकने कौमी असम्बली आलिया कामरान का बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बजट में किसी भी तरीके से आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। बजट में हमेशा महरूम तबका ही पिसकर रह जाता है जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती। तालीम और सेहत पर फोकस करना चाहिए। हमेशा इसी तरह से बजट पेश होता आया रहा है और वो भी एक नॉर्मल, समझे कि एक नॉर्मल रूटीन के अंदर एक बजट पेश हो गया। इसमें किसी भी तरीके से जो है आवाम के लिए कोई रिलीफ है ही नहीं और हमेशा से ही भी कोई रिलीफ नहीं रहा, क्योंकि पिस्ता हमेशा जो है वो महरूम तबका ही है जिसके पास रोटी भी नहीं होती खाने के लिए। तालीम, आपकी सेहत, इस तरह की जो मामलात हैं इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। वफाकी बजट 2025-26 खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीद की कोई किरण ना बन सका। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कहते हैं कि फाटा के जमशुदा अजला के लिए 100 अरब रुपए दिए जाने का वादा था। उन्होंने कहा कि मगर हालिया बजट में सिर्फ 65 अरब का
हिस्सा मुख्तस किया जाना नहायत तशवीशनाक अमर है। इस रकम से जमशुदा अजला पसमानदगी और महरूमियों से नहीं निकल पाएंगे। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा कि वफाकी PSDP में भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई बड़ी स्कीम का ना होना भी सूबे के साथ इस्तेहसाली सलूक दिखाई देता है। मालाकन डिवीजन, फाटा और दीगर इलाकों पर सेल्स टैक्स के इत्तलाक से इन इलाकों के आवाम पर बोझ मजीद बढ़ जाएगा। इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों के लिए रकम मुख्तस कर दी गई है। इस्लामाबाद सेफ सिटी, मिनिस्टर इनक्लेव अपार्टमेंट्स, अरकान पार्लियामेंट के रिहाइश गाहों और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स, दानिश स्कूल, कचहरी में सहूलत सेंटर, इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल, सेक्टर I-16 में जेल और दीगर मंसूबों के लिए भारी रकम मुख्तस कर दी गई हैं। इस्लामाबाद सेफ सिटी के लिए 3 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 अरब रुपए, मिनिस्टर्स इनक्लेव में अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ रुपए, अरकान पार्लियामेंट के लिए फैमिली रहायशगाह और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स बनाने के लिए 2.5 अरब रुपए, इस्लामाबाद के स्कूलों में सहूलियात की बेहतरी के लिए 90 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए खुसूसी सेंटर्स के लिए 14 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के इलाके कुरी में दानिश स्कूल बनाने के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए, रावल झील और कोरंग दरिया पर 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब के लिए 10 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद जिला कचहरी में साइलिन की सहूलत सेंटर के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपए मुख्तस, इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद के लिए 4 अरब रुपए, इस्लामाबाद के सेक्टर I-16 में जेल के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद में 4 नए बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए 36 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के इलाकों बरी इमाम और भादाना कला में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए 23 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में जिना अस्पताल बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद में बिजली ट्रांसमिशन की बेहतरी के लिए 6 अरब रुपए, इस्लामाबाद स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए 26 करोड़ रुपए, वजारत इत्तलात के इस्लामाबाद में सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के लिए 36 करोड़ रुपए, पिम्स अस्पताल में दिल के इलाज की सहूलतों के लिए 90 करोड़ रुपए, पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में कार्डियोलॉजी वार्ड के लिए 50 करोड़ रुपए, सब्जी मंडी I-11 इस्लामाबाद में सहूलतों की बेहतरी के लिए 20 करोड़ रुपए, बनी गाला इस्लामाबाद में सीवरेज सिस्टम के लिए 30 करोड़ और कोरंग रोड के लिए 10 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के देही इलाकों में बारिश के पानी से काश्तकारी के लिए 4 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद के इलाके शाह अलादिता में बुद्धा की गारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी बजट में रावलपिंडी कहूटा रोड और सिहाला रेलवे पुल के लिए 80 करोड़ रुपए, कोयटा मगरबी बाईपास की तौसी के लिए 90 करोड़ रुपए, मुजफ्फराबाद मानसेरा रोड के लिए 2 अरब रुपए और हैदराबाद सक्खा मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। वफाकी बजट में मुल्क की अहम शाहराहों की तौसी के लिए खती रकम मुख्तस कर दी गई है। इस्लामाबाद नागला हाईवे की GT रोड से मोटरवे तक तौसी के लिए 3 अरब 25 करोड़ रुपए और थाकोट से रायकोट तक शराय कराकोरम की रीलोकेशन के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रावलपिंडी कहूटा रोड और सिहाला रोड पुल के लिए 80 करोड़ रुपए, कोयटा मगरबी बाईपास की तौसी के लिए 90 करोड़ रुपए, मुजफ्फराबाद मानसेरा रोड के लिए 2 अरब रुपए, हैदराबाद सकर मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए, सियालकोट खारिया रावलपिंडी मोटरवे के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। N55 शिकारपुर ता राजनपुर सेक्शन के लिए 8 अरब 62 करोड़ रुपए, N55 राजनपुर ता डेरा गाजी खान सेक्शन के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए, N55 डेरा गाजी खान ता डेरा इस्माइल खान सेक्शन के लिए 7 अरब 23 करोड़ रुपए, N50 यार्ड ता योब के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पिंडी घेप ता कोहाट रोड के लिए 80 करोड़, गंभीला ता कोहाट रोड के लिए 1.5 अरब रुपए, शिंदूर ता गिलगित 216 किलोमीटर सड़क के लिए 3 अरब रुपए, पिशावर शुमाली बाईपास के लिए 50 करोड़ रुपए, N25 खुजदार कशलाक सेक्शन के लिए 34 अरब रुपए, N25 कराची कोयटा चमन शराह के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची के लिए विफाकी तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर दिया गया है। पानी सप्लाई के लिए 3 अरब 20 करोड़, जिला सेंट्रल कराची में फुटबॉल ग्राउंड के लिए 10 करोड़ रुपए, स्टील मिल्स की अराजी पर कराची इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। विफाकी बजट में कराची के लिए विफाकी तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर दिया गया। कराची अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के लिए 7.5 अरब रुपए, कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए 3 अरब रुपए, पानी सप्लाई मंसूबे के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए और साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। विफाकी बजट में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब रुपए, सिंध मदरसतुल इस्लाम मलीर कैंपस के लिए 15 करोड़ रुपए, जामे कराची में एकेडमिक सहूलियात में बेहतरी के लिए 30 करोड़ रुपए, NED यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए और NCA कराची कैंपस बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। जिला सेंट्रल कराची में फुटबॉल ग्राउंड के लिए 10 करोड़ रुपए, स्टील मिल्स के राशि पर कराची इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए, कराची में IT पार्क के लिए 6 अरब रुपए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बिल्डिंग के लिए 13 करोड़ रुपए, कायदे आजम म्यूजियम की तामीर नौ के लिए 29.5 करोड़ रुपए और हैदराबाद तरक्याती पैकेज के लिए 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं।
حیدرآباد سکھر موٹروے صرف سندھ کا نہیں پورے پاکستان کا منصوبہ ہے. شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی پورٹ سے پورے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے اور کوئی راستہ نہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے ملاقات. ہندوستان کی پاکستان کے خلاف جارحیت اور علاقائی استحکام کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا. اعلیٰ سطحی پاکستانی پارلیمانی وفد کی لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سر لنزے ہوئل سے ملاقات ہوئی. اسپیکر کو پہلگام واقعے کے بعد خطے میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا گیا. بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فوجی کارروائیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی جن کا نشانہ معصوم پاکستانی شہری خواتین اور بچے بنے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدام سے آگاہ کیا. وفد نے ہندوستان کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے سنگین نتائج اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خطرات سے آگاہ کیا.